स्टार्ट करते हैं इसको। कह रहा था एंड ऑफ द एज ऑफ द इंटरनल कंबशन इंजन इज इन साइट। ओके, इज इन साइट। ठीक है। देयर आर स्मॉल साइंस एवरीवेयर। The shift to hybrid vehicles is already underway among manufacturers. Volvo has announced it will make no purely a petrol engine cars after 2019, and Tesla has just started selling its first electric car aimed squarely at the middle class. The Tesla 3 sells $35,000 in the USA, and 4 lakh people have put down a small refundable deposit towards one. ठीक है। several thousands have already taken delivery. So यहाँ पे already taken ये शो क्या कर रहा है? already taken delivery की यार डिमांड तो है, डिमांड है। ठीक है। ये इतने सारे लोगों ने कर लिया वो उसको, एंड द कंपनी होप्स टू सेल 500,000 मोर नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे भी ये इस सब का नंबर्स का मतलब यही था। दिस इज अ रिमार्केबल फिगर। अगर तुम्हें वहां से नहीं समझ आया होगा तो यहाँ से समझ लेना। दिस इज अ रिमार्केबल फिगर फॉर अ मशीन विद अ फेयरली शॉर्ट रेंज एंड वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड चार्जिंग स्टेशंस। ठीक है। तो दिस इज समथिंग, मतलब रिमार्केबल फिगर। ठीक है। एंड ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन इज इन साइट, मतलब वी कैन सी दैट कि उसका एंड आ गया। सम ऑफ इट Some of it reflects the remarkable abilities of Elon Musk, the company's founder, as a salesman, engineer, and a man able to get the most out of his factory workers and governments he deals with. ठीक है। Mr. Musk is selling a dream that the world wants to believe in. So यहाँ पे एलॉन मस्क की थोड़ी सी तारीफ कर दी। This last this last may be the most important factor in the history. The private car is a device of immense practical help and economic significance, but at the same time, a threat for myth of, but at the same time, a theater for myth of unattainable self-fulfillment. ठीक है। उसने कहा कि it has practical help and economic significance, but at the same time, a theater, so there can be some drama for myth of unattainable self fulfillment. The one thing you will never see in a car advertisement is traffic, even though that is the element in which drivers spend their lives. So every single driver in a traffic jam is trying to escape from it. Yet it is the inevitable consequence of mass car ownership. So कोई ट्रैफिक के बारे में नहीं बात करता है। एवरी सिंगल ड्राइवर इन अ ट्रैफिक जैम इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम इट, येट इट इज द इनएविटेबल, मतलब यू जस्ट कांट इग्नोर इट, inevitable consequence of mass car ownership. The sleek and swift electric car is at one level merely the most contemporary fantasy. Contemporary मतलब होता है रियल टाइम में। रियल टाइम का मतलब है कि जैसे रियल टाइम में, contemporary कैसे समझाओ? रियल टाइम मतलब अभी के उसमें, जैसे अगर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, दे वर कॉन्टेम्पररी टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के टाइम में वो थे, एग्जिस्ट करते थे। सो द मोस्ट कॉन्टेम्पररी अभी के टाइम में फैंटेसी ऑफ ऑटोनॉमी एंड पावर। ठीक है। सो उसको हम लोगों ने ऑटोनॉमी, मतलब क्या मतलब होता है ऑटोनॉमी? ऑटो मतलब सेल्फ, नॉमी मतलब गवर्नेंस। तो सेल्फ गवर्नेंस एंड पावर, बट it might also disrupt our exterior landscape nearly as much as the fossil fuel engine did in the last century. So ये अच्छी चीज़ है, ऑटोनॉमी और पावर के लिए एक सिंबल हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, बट एट द सेम टाइम देयर इज गोइंग टू बी सम डैमेज. Electrical cars would of course pollute far less than fossil fuel driven, तो इलेक्ट्रिक कार बेटर है as compared to fossil fuel वाली. Instead of oil reserve, the rarest material for battery would make undeserving despots and their dynasties fantastically rich. ठीक है। Petrol stations would disappear. The air in cities would once more be breathable, and their streets as quiet as those of Venice. This isn't an isn't an unmixed good. Okay, cars that were as silent as bicycle would still be as dangerous as they are now to anyone they hit without audible warning. तो यहाँ पे मिक्स सिग्नल है, ए पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों चीज़ों की बात कर दी। द ड्रीम गोज फर्दर देन दैट. द इलेक्ट्रिक कार ऑफ द फ्यूचर विल बी सो thoroughly equipped with sensors and reaction mechanism that they will never hit anyone. Okay.
तो यहाँ पे फिर से just as brake don't let you skid today, the steering wheel of tomorrow will serve you away from danger before you have even noticed it. तो यहाँ पे पॉजिटिव बता रहा है कि वो उसमें और टेक्नोलॉजी आ जाएगी कुछ, ठीक है, टार्जन वंडर कार बन जाएगी। दिस इज वेयर द फैंटेसी ऑफ ऑटोनॉमस ऑटोनॉमी कम्स फुल सर्किल। तो यहाँ पे वो उसको एक तरह से एडवोकेट भी कर रहा है। ऑथर क्या कर रहा है, एडवोकेट कर रहा है कि हाँ यार, ऑटोनॉमी और पावर की तो बात है। दिस इज वेयर द फैंटेसी ऑफ ऑटोनॉमी कम्स फुल सर्किल। द लॉजिकल आउटकम ऑफ कार्स which need no driver is that they will become cars which need no owners either. Instead, they will work as taxis to someone at will, but only for the journey we actually need. We actually need. This is the future towards which Uber is working. The ultimate development of private car will be to reinvent public transportation. Public transportation reinvent हो जाएगा। Ultimate aim है, ऐसा author बोल रहा है। Traffic jam will be abolished only when the private car become a public. Only when a private car becomes a public utility. What then will happen to our fantasies of independence? Question वो पूछ रहा है। So we will all have to take it to electrically powered bicycles. तो हमें फिर हम like it was a bit, मतलब ह्यूमर भी था, तुम्हें नहीं दिखा वो बात अलग है, बट ऑथर ने कहा कि अच्छा उसके बाद फिर फैंटेसीज का क्या होगा उस इंडिपेंडेंस का। सो देन वी विल हैव टू गो फॉर इलेक्ट्रिकली पावर्ड बाइसिकल्स। तो वो थोड़ा सा ह्यूमर था, बट वो कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। अब पहला क्वेश्चन कर लो। Which of the following statement best reflects the author's argument? Hybrid and electric vehicles signal the end of the age of internal combustion engine. End of the age of internal combustion engine is in sight. There are small signs everywhere. The shift to hybrid is already underway among manufacturers. So there are small signs everywhere. Is in sight. Hybrid and electric vehicles signal the end of age of combustion. वो कह रहा है कि वो आने वाला है, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल से एंड ऑफ जो भी इंटरनल कंबशन है वो आने वाला है, इज इन साइट है। ऑप्शन क्या कह रहा है कि आ गया है। सिग्नल द हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सिग्नल द एंड ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन। नहीं समझ आया, इसको होल्ड पे डाला। कई बार अपने जो ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं वो कई बार नहीं समझ आते हैं, ठीक है, दैट इज ह्यूमन बायस। फिर बी आते हैं, एलॉन मस्क इज अ रिमार्केबली सिग्नल द एंड ऑफ, चलो वो दूसरे तरीके से समझा दूंगा। एलॉन मस्क इज अ रिमार्केबली गिफ्टेड सेल्समैन, लेट्स गो। सो लिखा है एलॉन मस्क एज अ सेल्समैन इंजीनियर एंड मैन एबल टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ हिज फैक्ट्री। तो तारीफ कर रहा है, बट इज अ रिमार्केबली गिफ्टेड सेल्समैन है कि नहीं? नहीं है। समझे, उसमें लिखा है सिर्फ सेल्समैन है, ये तुम आगे एक्स्ट्रा अपना लेके आए हो, तो ये हट जाएगा। तो ऑथर का आर्गुमेंट नहीं, द प्राइवेट कार रिप्रेजेंट्स एन अनअटेनेबल मिथ ऑफ द प्राइवेट कार रिप्रेजेंट्स एन अनअटेनेबल मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस। वो मिथ ऑफ कुछ ऐसे करके लिखा हुआ था कहीं पे। Yes, the private car is a device of immense practical help and economic significance, but at the same time, a theater for myth of unattainable self fulfillment. But at the same time, a theater for myth, so it gives them a platform for myth of unattainable self fulfillment. Represents an unattainable myth of independence, self fulfillment का दूसरा वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड नहीं जाएगा, वर्बेटम नहीं आएगा। वर्बेटम क्या होता है? वर्ड फॉर वर्ड, मतलब सेम टू सेम। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है आंसर।
फिर आता है द फ्यूचर उबर कार विल बी इन्वायरमेंटली फ्रेंडलियर देन इवन द टेस्ला, वी डोंट नो। इसके बारे में जो बोला नहीं तो हमें पता नहीं है। बचता है ए ऑप्शन और बचता है सी ऑप्शन। हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सिग्नल द एंड ऑफ एज ऑफ इंटरनल कंबशन। चलो सी ऑप्शन बचा है। The end of age of internal combustion is an engine is in sight. There are small signs everywhere. The shift to hybrid vehicle is already underway among manufacturer worldwide around. No, Tesla has just started. ठीक है फिर और दूसरे तरीके से कैसे समझाऊं? Some of it reflect the removability of Elon Musk. Is inside the end of it is inside. There are small signs everywhere. The shift to hybrid vehicle. ये दे रखा है कि hybrid and electric signal व्हीकल सिग्नल द एंड ऑफ एज ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन। अगर तुम उसको मान लेते हो कि अच्छा नहीं, सिग्नल का मतलब वो वाला सिग्नल नहीं है, फ्यूचर वाला सिग्नल है। ये दो तरह के सिग्नल हो सकते हैं ना, कि एक सिग्नल कर दिया कि खत्म ही हो गया, एक सिग्नल है कि हो सकता है फ्यूचर में। जो लोग ए मार्क कर रहे हैं उनको लग रहा है कि ये तो एक सिग्नल के सिग्नल की तरह लो ना। बट फिर अगर तुम ए और सी में तुम्हें कंपेयर मानना है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट। ऑथर का आर्ग्यूमेंट क्या है? तो क्या ये ऑथर का आर्ग्यूमेंट है? देखो ये दोनों बहुत ही क्लोज, अगर तुम उस एंगल से देखोगे तो तुम्हें ए और सी में बहुत मतलब ऐसे ज्यादा क्लोज दिखेंगे। इनमें से एक ही होगा बेस्ट रिफ्लेक्ट द ऑथर्स आर्गुमेंट। इलेक्ट्रिक व्हीकल सिग्नल द एंड ऑफ, जैसे मैंने सिग्नल दे दिया है, रेड सिग्नल आ गया है मेरी तरफ से कि वो खत्म हो गया है, रेड सिग्नल आएगा मेरी तरफ से कि वो खत्म। इसका यहाँ पे इसका ये मतलब है कि वो मतलब एंड ऑफ द एज ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन हो गया है। समझे कि रेड सिग्नल आ गया है, यहाँ पे उसकी मीनिंग ये है, इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन है। और किसी वजह से मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, वरना मैं समझा देता। कैसे समझाऊं और? देखो ए, इसका ऑप्शन सी में जैसे अनअटेनेबल आया तो वो ऐसे एक्सट्रीम में काउंट नहीं होगा, मतलब मैंने तो यही सोच के रिजेक्ट किया था कि सी बहुत एक्सट्रीम साउंड कर रहा था। देखो एक्सट्रीम ऑप्शंस, एक्सट्रीम तो पहली चीज है नहीं, बट क्योंकि अगर पैसेज में अनअटेनेबल सेल्फ फुलफिलमेंट है तो फिर उसको एक्सट्रीम नहीं मानेंगे, क्योंकि पैसेज में भी तो सेम लाइन लिखी हुई है। तो इसलिए हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ना कि वो रिजेक्ट हुआ। यश पूछ लो। जो ए ऑप्शन है उसमें लाइक सिग्नल्स तो लाइक लाइकली टू हैपन, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है कि अगर जो इलेक्ट्रिक कार्स आ जाएंगी तो वो जो है जो पेट्रोल बेस्ड कार्स हैं उनको जो इफेक्ट करेगी। इसका मतलब इंटरप्रिटेशन तो नहीं निकल रहा है, और इसी पे पूरे पैरा पे ऑथर जो है आर्ग्यू कर रहा है। और ये जो है एक तरह से जो प्राइवेट कार रिप्रेजेंट द अनटेबल मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, ये लाइक एक पार्ट है उसका। इस पूरे पे ऑथर आर्ग्यू नहीं कर रहा है, आर्ग्यू तो ऊपर वाले पे कर रहा है ना, इलेक्ट्रिक कार और पेट्रोल कार पे हाइब्रिड। देखो पहली चीज तो आर्ग्यू, आर्ग्यू मतलब आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट वो वाला आर्ग्यूमेंट नहीं है जो डिबेट वाला है। आर्ग्यूमेंट हो जाएगा तुम्हारा कि ऑथर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिफ्लेक्ट द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट। तो वो डिबेट वाला नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट है कि जो मैंने अपना पॉइंट रखना, ऑथर्स ओपिनियन। ठीक है, अब ये भी है और ये भी है, तो उसमें तुम क्या कर रहे हो, सेल्फ अजम्पशन ले रहे हो कि यार सिग्नल तो यहाँ पे ये भी है। ठीक है, हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सिग्नल द एंड ऑफ, पहली चीज तो वो स्मॉल सिग्नल थे। ठीक है, स्मॉल सिग्नल और वो सिग्नल है, ऐसे तुम देख सकते थे। ठीक है, सिग्नल द एंड ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन, तो इसलिए ये सी वाला ऑप्शन होगा। दूसरा ये तरीका है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे रहेगा, नो डाउट, क्योंकि सब्जेक्टिव है ना, मैथमेटिकल नहीं है कि 2 + 2 4 ही होगा।
सेकंड कर लेते हैं। देखो एग्जाम में तो बेस्ट पॉसिबल आंसर निकालना है तुम्हें, पर एज ए स्टूडेंट तुम दोनों ही, अगर ऊपर में किसी ने ए या सी दोनों ही मार्क कर रहे हैं तो ठीक है, मतलब इट्स ओके, मतलब वो फिर गलत होना ही था क्वेश्चन वो। The author points out all of the following about electric car except, तो तीन चीजें करता है their reliance on rare material for battery will support despotic, जो इसका मतलब क्या होता है भूल गया मैंने, याद तो करा था, तो ये नहीं है। They will reduce air and noise pollution, ये भी दे रखा था। They will not decrease the number of traffic jam, फिर है they will ultimately undermine rather than further drive autonomy, they will not decrease the number of traffic jam, दिस इज ट्रू, व्हाई दिस इज ट्रू, क्योंकि उसने लिखा था ना ट्रैफिक जैम कम होगा देन ये जो हमारे कार्स हैं यूज होगी पब्लिक, अगर पब्लिक अभी मतलब नहीं हो रही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक कार के लिए दे विल नॉट डिक्रीज द नंबर ऑफ ट्रैफिक जैम, दिस इज आल्सो ट्रू, दिस इज आल्सो ट्रू, दिस इज आल्सो ट्रू, दे विल अल्टीमेटली अंडरमाइन रादर देन फर्दर ड्राइव ऑटोनॉमी, तो ये आंसर हो जाएगा। समझ आता है किसी ने कुछ और, सबने डी मार्क करा है, सब समझदार हो चुके हैं अब। According to the author, the main reason for Tesla's remarkable sales is that, author के according, the main reason for Tesla's remarkable sales is that चलो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अकॉर्डिंग, तो मतलब पैसेज के अकॉर्डिंग बाहर की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए मुझे। द मेन रीजन फॉर टेस्लाज रिमार्केबल सेल इज दैट, हाँ ऊपर देख लेते हैं एक बार, द एंड ऑफ एज ऑफ इंटरनल कंबशन इज इन साइट, पर आया नहीं है। There are small signs everywhere. The shift to hybrid vehicle is already under way among manufacturers. Volvo has announced that it will make no purely petrol engine cars after 2019, and Tesla has just started selling its first electric this. This is a remarkable figure for a machine with a fairly short range and a very limited number of specialized charging stations. Some of it reflects the remarkable ability, some of it क्या? Some of these sales numbers reflect the remarkable abilities of Elon Musk, the company founder. This is selling a dream that would. So some of it is there कि factories workers से ज़्यादा and the governments he deals with. Mr. Musk is selling a dream that world wants to believe in. This last maybe the this last may be the most important factor in the story. This last may be the most important factor in the story. मतलब जो लास्ट वाली बात है, the Mr. Musk is selling a dream that the world wants to believe in. This last may be the most important factor in the story. Why it is the most important factor? क्योंकि मैं अगर कैट की कोचिंग दे रहा हूँ किसी को और उसको चाहिए ही नहीं, तो मैं चाहे जितना बढ़िया उसको सेल करना चाहूँ, उसको चाहिए ही नहीं, तो वो बिलीव ही नहीं करता, तो वो आएगा ही नहीं, ठीक।
So this last may be the most important factor in the story. The private car is a device of immense practical help and economic significance, but at the same time a theater for myth of unattainable self fulfillment. ठीक है, सो यहाँ पे उसने दिया कि एलॉन मस्क तो बढ़िया काम कर रहा है, बट एट द सेम टाइम पीपल वांट टू हैव इट या वांट टू बिलीव इन इट. दिस लास्ट मे बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. तो अब हम क्वेश्चन पे आएंगे. According to the author, the main reason for Tesla's remarkable sale is that, in the long run, Tesla is more cost effective than fossil fuel. अब देखो, ये sounds good. This is an argument जो तुम्हें लगता है outside world, मतलब अगर हम नॉर्मल लाइफ में बात करें तो यार तुम वही चीज लोगे जो कॉस्ट इफेक्टिव हो. ठीक है, द टेस्ला इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन फॉसिल फ्यूल ड्रिवन कार्स. ठीक है, बट दिस इज समथिंग जो मेन रीजन नहीं है अकॉर्डिंग टू द पैसेज. आउटसाइड द वर्ल्ड हो सकता है, वो भी एक जनरल पब्लिक के लिए हो सकता है, मे बी कुछ लोगों के लिए हो कि यार ठीक है उनके लिए कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, मे बी कुछ लोगों को यार वही शॉप के लिए चाहिए कि टेस्ला होनी चाहिए. ठीक. तो ये चीज हम अकॉर्डिंग टू पैसेज पे स्टिक करेंगे तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पैसेज द मेन रीजन इज नॉट कि वो कॉस्ट इफेक्टिव है. मेन रीजन ऊपर हमने अभी पढ़ा कि यार एलॉन मस्क की वो सेल्स अच्छी है, उसके अलावा एक और चीज है कि पीपल वांट टू बिलीव इन इट. ओके, तो वहां पे हमें समझ आया. तो इसलिए ये वाला कॉस्ट इफेक्टिव वाला जो एंगल है वो अकॉर्डिंग टू ऑथर नहीं सही है. आउटसाइड द वर्ल्ड इट इज गुड, लॉजिकली इट इज फाइन, बट हमें वो ऑप्शन नहीं करना है जो आउटसाइड द वर्ल्ड ट्रू है. ये दिस इज ऑल्सो अ ट्रैप. एक जनरल चीज होती है, ठीक है, जो तुम्हारे बायसेस हैं, बट तुम तो ऑथर अकॉर्डिंग टू ऑथर लिखा हुआ है ना. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द मेन रीजन फॉर टेस्लाज रिमार्केबल सेल, तो तुम ये लिख सकते हो कि भाई कॉस्ट इफेक्टिव है. कॉस्ट इफेक्टिव क्या, पॉल्यूशन भी है, फिर इसमें आंसर हो सकता है. ठीक है, कोई कुछ कुछ लोग एनवायरमेंटलिस्ट होंगे इधर. ठीक है, द यूएस गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ टैक्स सब्सिडी फॉर टेस्ला बायर, वी डोंट नो. सो अकॉर्डिंग टू ऑथर वी डोंट नो. The company is rapidly upscaling the number of specialized charging station for customer convenience. अपस्केल कर रहे हैं चार्जिंग स्टेशन, नहीं कर रहे हैं, हमें कोई आइडिया है इसके बारे में. मे बी आउटसाइड वर्ल्ड में अगर तुम इंफॉर्मेशन इसको देखो तो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू. और ये क्या, बी वाला ऑप्शन भी ट्रू है. अनाउंस द टैक्स सब्सिडी फॉर टेस्ला बायर्स कर रहे हैं वो चीज, बट क्योंकि इलॉन मस्क के टाइप्स अच्छे हैं. ठीक है, तो बट ये सारी चीजें तो आउटसाइड वर्ल्ड है ना, मतलब आउटसाइड आउटसाइड पैसेज लिख लेता हूँ यहाँ पे, आउटसाइड पैसेज लिख लेता हूँ, वर्ल्ड अटॉप लेता हूँ. आउटसाइड पैसेज बी भी सच है, सी भी सच, बट अकॉर्डिंग टू ऑथर बी भी गलत है, सी भी गलत है और ए भी गलत है. इसलिए हमारा डी है, क्योंकि पीपल बिलीव इन द ऑटोनॉमी प्रेजेंटेड बाय प्राइवेट कार. सो पीपल, एलॉन मस्क तो अच्छा सेल्स पर्सन है, बट लोग भी तो बिलीव कर रहे हैं उस चीज में. तो ये हो जाता है कि पैसेज वर्सेस आउटसाइड पैसेज का ये जो ट्रैप है, समझ आती है. द ऑथर कम्स टू द कंक्लूजन दैट, ऑथर का कंक्लूजन क्या है, पैसेज रेफर करना पड़ेगा बार बार. चैट जीपीटी ने भी ट्रैप बताया था. चैट जीपीटी पे डाला तुमने क्वेश्चन, चैट जीपीटी आंसर दे देता है इस सबके. अच्छा, ट्रैप पूछे थे मेरा धंधा बंद कराएंगे. वो पूछ रहा था ना एक बंदा मुझसे कि विल एमबीए रिप्लेस, नहीं विल एआई रिप्लेस एमबीए जॉब. अबे एआई विल नॉट ओनली रिप्लेस एमबीए जॉब, इट विल आल्सो रिप्लेस एजुकेटर्स. ठीक है, द ऑथर कम्स टू द कंक्लूजन दैट car drivers will no longer own cars but will have to use. The author का conclusion क्या है, car drivers will no longer own cars but will have to use public transport. ऑथर ने ये कहा है कि उनको यूज करना ही पड़ेगा. ये तो टोन ही नहीं है ऑथर की. ऑथर ने कहा कि यार ये ट्रैफिक जैम होता रहेगा जब तक हम लोग खुद से
पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करेंगे, ठीक है। कार्स विल बी कंट्रोल्ड बाय टेक्नोलॉजी दैट इज मोर एफिशिएंट देन कार ड्राइवर्स, मोर एफिशिएंट देन कार ड्राइवर्स। चल इसको होल्ड कर लेते हैं। कार ड्राइवर्स ड्रीम ऑफ ऑटोनॉमी, ठीक है, ट्रू, बट द फ्यूचर में बी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मे बी हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑथर। उसने बोला है ना कि उबर इज ऑल्सो वर्किंग फॉर इट एंड दिस कैन बी अ सर्टेन फ्यूचर, लाइक उसके बाद हम जब ये सब देखते आ रहे हैं तो मे बी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सो दिस कैन ऑल्सो बी होल्डेड। उसके बाद इलेक्ट्रिकली पावर्ड बाइसाइकिल्स आर द ओनली वे टू अचीव ऑटोनॉमी इन ट्रांसपोर्टेशन। वो उसने वहां पे ह्यूमन ने उसको लिटरल कर दिया। उसने कहा था कि अब तो साइकिल पे चलना पड़ेगा ऑटोनॉमी लेने के लिए। अगर मैं ऑथर होता और मैं बोल रहा होता तो ऐसे करके वो साउंड करता, बट वो बोल नहीं रहा है पैसेज तुमसे, तुम्हें ऑडियो नहीं मिली उसकी, सिर्फ विजुअल्स मिले। तो बी और सी ऑप्शन बचता है। कार्स विल बी कंट्रोल्ड बाय टेक्नोलॉजी दैट इज मोर एफिशिएंट बाय देन कार ड्राइवर्स। कंक्लूजन क्या है? This is where the fantasy of autonomy comes full circle. The logical outcome of car which we need no driver is that they will become cars which need no owners either. Instead, they will work as taxis do, summoned at will but only for journeys we actually need. This, the future towards which Uber is working, the ultimate development of private car will be to reinvent public transportation. Traffic jam will be abolished only when the public car becomes a public utility. What then will happen to our fantasies of independence? We will have to take a इलेक्ट्रिकली पावर्ड बाइसाइकिल। कहीं पे उसने, कहीं पे ऑथर ने कंक्लूजन ये दिया है कि जो कार्स जो टेक्नोलॉजी से कंट्रोल होंगी वो मोर एफिशिएंट होंगी देन कार ड्राइवर्स। ये क्या है? खुद से माना है ना, यार ये तो होगा, ये तो होगा ही। दिस इज योर कंक्लूजन। ऑथर इस चीज पे बोल ही नहीं रहा है, और एग्जामिनर ये चीज जानता है कि तुम खुद से कंक्लूजन निकाल लोगे सेल्फ अज्यूम करके कि यार हाँ यार वो कार अच्छी होगी, ऑब्वियसली होगी, मैं खुद मानता हूँ वो अच्छी होगी, एफिशिएंट होगी, बट द ऑथर कम्स टू द कंक्लूजन रादर देन यू कमिंग टू द कंक्लूजन। तुम समझे? तो ऑथर के जो पॉइंट्स हैं और जो तुम्हारे बायसेस हैं उसको दूर रखना है, क्योंकि एक बायस तुम्हारा ऑप्शन में होगा। ये भी एक तरह का ट्रैप ही है कि तुम क्या सोचते हो, एक जनरल थॉट ही सोचते होंगे बी वाली चीज। मतलब अगर तुम जनरल क्राउड से सर्वे करा लो तो वो भी बोल देंगे कि हाँ यार 99% लोग बोल देंगे कि मोर एफिशिएंट होगी और फुटपाथ पे कम लोग मरेंगे। ठीक है, फिफ्थ पे आ जाते हैं। उबर का एग्जाम्पल क्यों दिया है? उबर का एग्जाम्पल क्यों दिया है? इन द फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार्स विल बी इक्विप्ड विद मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट कोलिजन। देखो ये चीज ट्रू है, सर ने बोल रखा था पैसेज में, बट बट दिस इज नॉट आंसरिंग क्वेश्चन। व्हाई इट इज नॉट? क्योंकि हमसे पूछा कि ऊबर क्यों घुसेड़ दिया यहाँ पे कॉन्सेप्ट में, और ऊपर वाला पॉइंट है जो कि सच है, पैसेज में भी है कि यार कोलिजन बच जाएंगे, ठीक है, बट दिस इज नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन। ऊबर से रिलेटेड नहीं है ये। बी है इन द फ्यूचर ट्रैफिक जैम विल नॉट एग्जिस्ट। ये भी पॉसिबिलिटी है, कब पॉसिबिलिटी जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, बट क्या ये ऊबर से रिलेटेड है? टू सम एक्सटेंट हो सकता है इन द फ्यूचर। अब तुम ये सोचो कि ऊबर है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर इन द फ्यूचर प्राइवेट कार विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू अ फॉर्म ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। द ऑथर प्रोवाइड्स द एग्जांपल ऑफ दिस टू आर्ग्यू। ऑथर इस एग्जांपल को लाया क्या आर्ग्यू करने के लिए कि इन द फ्यूचर प्राइवेट कार्स विल बी ट्रांसफॉर्म्ड मे बी इनटू अ फॉर्म ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दिस इज आल्सो डी है इन द फ्यूचर उबर राइड्स विल आउटस्ट्रिप, चल ठीक है, ये हट गया। तो बी और सी बचते हैं। सी वाला, उस दिन मैंने तुम्हें बताया था ना कि एक शेर था
शेर बताया था, कुछ कुछ बताई थी कहानी। शेर था, उसने कैमरा देखा, हाँ याद आ गया, उसकी डेथ हो गई। शेर की डेथ डेथ हो गई तो स्कैवेंजर्स आए, तो उन्होंने उसको खा लिया और फूड चेन में डिसरप्शन हो गया। उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो गया, और उसकी वजह से तुम्हारा कैट नहीं निकला। नहीं, ये डार्क हो जाएगा, रुको। कैट निकल गया, ठीक है, कैट निकल गया। लोगों के फीलिंग के साथ खेलता है, मारेंगे मुझे किसी दिन। अच्छी बात है, ऑनलाइन में ही पढ़ाता हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। कैट निकल गया, तो कैट तुम्हारा क्यों निकल गया? अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम क्लाइमेट चेंज बोलोगे कि तुम शेर बोलोगे? प्रॉक्सिमिटी रूल आता है, प्रॉक्सिमिटी रूल। जो क्लोजेस्ट रीजन, प्रॉक्सिमिटी रूल कहता है जो क्लोजेस्ट रीजन है वो आंसर है। तो यहाँ पे इन द फ्यूचर ट्रैफिक नॉट एग्जिस्ट। ट्रैफिक जैम नहीं एग्जिस्ट करेगा क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होगा, और क्योंकि ऊबर, एक ये तरीका होता है। और दूसरा है कि डायरेक्ट डायरेक्ट ऊबर इंट्रोड्यूस किया कि ट्रैफिक ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तरह यूज हो जाएगा। तो कौन सा वाला आंसर है, समझे? लास्ट क्वेश्चन जल्दी से करो, शेयर को मैं साइड करता हूँ तब तक। In para 6, the author mentioned electrically powered bicycle to argue that if Elon Musk were a truly visionary, he would invest funds in developing, ये हटा देता हूँ, ठीक है। Our fantasies of autonomy might unexpectedly require us to consider electric bicycle. Probable हो सकता है ये आंसर। In terms of environmental friendliness and safety, electrical bicycles rather than electrical cars are the future, ये हटा देता हूँ। Electrical buses are the best form of transportation. तो सब हट ही गया, तो एच ए बी ही आंसर है, बाकी सब गार्बेज था, बाकी सब गार्बेज था, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ आ गया होगा। टाइम देख रहे हो एकदम 8:43। 2 मिनट ज्ञान ले लो, देऊं कि नहीं दूं, रहने देता हूँ। 2 मिनट का ज्ञान ये है कि क्या के लिए जी जान से पढ़ना है, पर समझे? जी जान से पढ़ना है पर डेस्परेट नहीं होना है। इसका क्या मतलब है? 22 में पढ़ाई की और हर दिन जपा कि भाई कैट निकल, कैट क्रैक कर लूं, नहीं निकला। कैट 2023 में सिर्फ पढ़ाई की और एक खुद को बोला कि यार, एंड मैं तब भी निकल गया था कि यार सारी चीजें मेरी हाथ में नहीं है। कैट दूंगा, एंड मैं दूंगा, स्नैप दूंगा, जैड भी दूंगा, और जो भी निकल जाएगा एक अच्छे इंस्टीट्यूट चला जाऊंगा, ठीक है। तो फोकस सिर्फ इस पे करा रादर देन ये बैठने पे कि यार कैट निकल जाए, कैट क्रैक कर लूं। तो उससे क्या हुआ? कैट क्रैक हुआ, एंड मैट भी क्रैक हुआ, स्नैप भी क्रैक हुआ, ये जैड भी क्रैक हुआ। जैड क्रैक नहीं हुआ, सॉरी, मन में क्रैक हुआ क्योंकि पहुंच ही नहीं पाया पेपर देने। तो ये 3 चीजें क्रैक हो गई, इसको हटाओ, ठीक। तो हर दिन ये नहीं बोलते रहना है कि क्रैक ही करना पड़ेगा और ये सब। इससे क्या होता है ना, तुम्हारे पे मेंटल बर्डन आ जाता है, एंड दैट इज वेरी बैड, वेरी 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 बैड। क्योंकि जब कैट का पेपर आएगा
उसका नहीं होता है जिसको बहुत सारा आरसी आता है और बहुत सारी कॉन्ट्स आती है और बहुत सारी मतलब उसको, मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग होंगे डेफिनेटली, मैं तो अभी भी ये चीज़ बोलता हूँ। बट इट्स अबाउट तुम्हारा टेम्परामेंट कैसा है। वो होता है ना, आईक्यू ईक्यू जो होता है, इमोशनल क्वेश्चन कितना है स्ट्रांग है, तो उसका खेल हो जाता है वहाँ पे। 50% नॉलेज का है, 50% तुम्हारा इमोशनल क्वेश्चन कितना स्ट्रांग है। और मेरा ये पोर्शन बहुत स्ट्रांग है लकीली, क्योंकि जनरली मुझे मतलब मैं पैनिक होता ही नहीं हूँ। बहुत बहुत ही रेयर इंसिडेंट होता है कि एक साल में एक बार हो गए।